السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج میں کلاس 12 کی کہکشاں بک سے چیپٹر نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کو پڑھیں گے، جو ایک مضمون ہے جس کے لکھنے والے سید سلیمان ندوی ہیں۔ تو اس چیپٹر میں کیا باتیں ہوں گی، وہ باتیں میں پہلے آپ کو بتلا دوں کہ کئی الفاظ ہیں، بعض پرانے لفظ ہیں، بعض پرانے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کی تحقیق کی گئی ہے کہ یہ الفاظ ہندوستانی ہے، ترکی زبان کا یہ الفاظ ہے، ہندی زبان کا الفاظ ہے، یا اردو زبان کا الفاظ ہے، یا انگریزی زبان کا الفاظ ہے۔ انہی باتوں کو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے، اور یہ ایک کیا ہے، مضمون ہے جس کے لکھنے والے سید سلیمان ندوی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ سب سے پہلے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ایک مضمون ہے، اس کے لیکھک، اس کے رائٹر کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ دنیا میں رہ کر کے کون کون سے کارنامے انجام دیے، ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کا انتقال کب ہوا، ان کے بارے میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مضمون کا مصنف کہتے ہیں لیکھک کو، رائٹر کو، سید سلیمان ندوی ہے۔ تو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ایک مضمون ہے، اس کے مصنف، اس کے رائٹر، اس کے لیکھک کا نام کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ایک مضمون ہے، اس کے لیکھک کا نام کیا ہے؟ وہاں پر 3 یا 4 آپشن دیا رہے گا، تو آپ جو ہے سید سلیمان ندوی کو ٹک لگا کر کے آ جائیے گا، یہ آپ کا جواب، آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا۔ اب اس کی پیدائش کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان کی پیدائش 22 نومبر 1884 عیسوی کو بہار کے ایک مردم خیز گاؤں دسنا میں ہوئی۔ یہاں پر ہمیں 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سید سلیمان ندوی کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی، تو ان کا جواب ہوگا 22 نومبر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ کون سے سال میں ان کی پیدائش ہوئی؟ تو جواب ہوگا 1884 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی۔ اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی؟ تو جواب ہوگا بہار کے ایک مردم خیز گاؤں دسنا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ مردم خیز گاؤں کس گاؤں کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا مردم خیز گاؤں ان علاقے کو، ان بستی کو، ان گاؤں کو کہتے ہیں کہ جہاں کے لوگ ان پڑھ ہو، جہاں لوگ پڑھے لکھے نہ ہو، تو ایسے گاؤں کو مردم خیز گاؤں کہتے ہیں۔ تو سید سلیمان ندوی کی پیدائش 22 نومبر 1888 عیسوی کو بہار کے ایک مردم خیز گاؤں دسنا میں ہوئی۔ اب اگر ان کے انتقال کے بارے میں بات کریں، ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں، تو 23 نومبر 1953 عیسوی کو کراچی میں ہوا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 23 نومبر 1953 عیسوی کو کراچی میں ہوا۔ ان کی پیدائش 22 نومبر میں اور ان کا انتقال جو ہے 23 نومبر میں ہوا۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن ہے۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حکیم سید ابو الحسن۔ یہ ایگزام میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ سید سلیمان کے والد کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا حکیم سید ابو الحسن ان کے والد کا نام ہے۔ 1901 عیسوی کو دارالعلوم ندوۃ العلماء گئے، جہاں شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ تو سید سلیمان ندوی 1901 عیسوی کو دارالعلوم ندوۃ العلماء جو ایک مدرسہ ہے، لکھنؤ میں یہ مدرسہ ہے، وہاں پر گئے۔ کب گئے؟ 1901 عیسوی کو یہ گئے، اور اس مدرسہ میں شبلی نعمانی نام سے ایک استاد رہتے تھے، انہی کے پاس یہ سید سلیمان ندوی رہتے تھے، پڑھتے تھے، اور اس سے کافی فائدہ اٹھایا اور اس سے کافی استفادہ کیا۔ تو سید سلیمان ندوی 1901 عیسوی کو دارالعلوم ندوۃ العلماء گئے، جہاں شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پر ہمیں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام کیا ہے، ان کے ٹیچر کا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے
शिबली नौमानी उनके उस्ताद का नाम है। क्या है? शिबली नौमानी उनके उस्ताद का नाम है। और 1902 ईस्वी को उनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ, तो 1902 ईस्वी को उनका पहला मजमून शाये हुआ। और एक रिसाला चल रहा था अल-पंच के नाम से। किस नाम से? अल-पंच के नाम से एक रिसाला चल रहा था। उन्हीं रिसाला में खातूनों की तालीम के नाम से उन्वान से पहला मजमुआ 1902 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी ने शाये किया। तो हमें ये यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि अल-पंच ये क्या है। तो अल-पंच एक ये रिसाला है। इसी रिसाला के अंदर, इसी अखबार के अंदर खातूनों की तालीम के नाम से सैयद सुलेमान का पहला मजमून 1902 ईस्वी को शाये हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1903 ईस्वी से वो अशार, नज़में और गज़लें लिखना शुरू कर दिया। आप इसको याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी 1903 ईस्वी से वो अशार, नज़में और गज़लें लिखना शुरू कर दिया। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी ने अशार, नज़में और गज़लें कब से लिखना शुरू किया, तो इसका जवाब होगा 1903 ईस्वी से वो अशार, नज़में और गज़लें लिखना शुरू कर दिया। 1913 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। तो 1913 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो अखबार चल रहा था अल हिलाल के नाम से, उन्हीं में वो वाबस्ता हो गए, उन्हीं में वो काम करने लगे। किस अखबार में? अल हिलाल अखबार में वो काम करने लगे। कब से? 1913 ईस्वी से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वो वाबस्ता हो गए, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। फिर पूना कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। यानी अखबार अल हिलाल से ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो जितने दिन रहे उसके बाद वो जो है पूना कॉलेज में दरसो तदरीस यानी पढ़ाने का काम अंजाम देने लगे। मशहूर किताबें उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं जिनका नाम अरब व हिंद के ताल्लुकात है, अरबों की जहाज़ रानी, सीरत आयशा, खय्याम और रहमत आलम। ये 4 किताबें उनकी मशहूर किताबें हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। अब हम लोग बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो मज़मून है, इसके अहम निकात को पढ़ेंगे। स्टार पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो मैं आपको ये बात बतला दूं कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो मज़मून है, इस मज़मून का मुसन्निफ़, इस मज़मून का लेखक सैयद सुलेमान नदवी है। सैयद सुलेमान नदवी 2 ज़बान जानते थे। सैयद सुलेमान नदवी 2 ज़बान जानते थे। नंबर 1 में है अरबी, नंबर 2 में है अंग्रेज़ी। अरबी ज़बान को क्या कहते हैं? पूरबी ज़बान कहते हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान को पश्चिमी ज़बान कहते हैं। और आगे दिया गया है जिन बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहक़ीक़ की गई है वो दर्ज झेल है। जिन बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहक़ीक़ की गई है वो दर्ज झेल है। नंबर 1 में दिया गया है फुतूर के बारे में। फुतूर इसका माना तोड़ना है। फुतूर इसका माना तोड़ना है और इसी से इफ्तार बना है। फुतूर का माना क्या है? तोड़ना, और इससे इफ्तार बना है। नंबर 2 में दिया गया है निहार के बारे में। तो ये निहार ये फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान का लफ्ज़ है। निहार हिंदुस्तानी और फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो नाहार से बना है। किससे बना है? नाहार से बना है। ना नफ़ी के लिए आता है और हार ग़िज़ा के माना में है। यहाँ पर हमें एक बात ये याद रखनी है कि निहार ये फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि निहार के अंदर जो ना है ये नफ़ी के लिए है, और हार जो है ये ग़िज़ा के माना में है। नंबर 3 में दिया गया है आहार के बारे में। आहार का माना क्या है? इसका माना लई है जो कागज़ और कपड़े में मजबूती के लिए चिपकाया जाता है। आहार का माना क्या है? आहार का माना है लई जो कागज़ और कपड़े में मजबूती के लिए चिपकाया जाता है।
नंबर 4 में दिया गया है कलई के बारे में। ये क्या है? कलई है। लिखने के एतबार से यहाँ पर कलई देखा जा रहा है लेकिन पढ़ा जाएगा कलई। तो इसका माना सफाई करना है और इसी से कलई फेरना जिसका माना है ऐब छुपाना और कलई खोलना इसका माना है ऐब जाहिर करना बना है। तो कलई का माना क्या है? सफाई करना इसका माना है और कलई ही से कलई फेरना यानी ऐब छुपाना और कलई खोलना यानी ऐब जाहिर करना बना है। आपको एग्ज़ाम में इस तरह पूछा जाएगा कि कलई फेरना का माना क्या है, तो इसका जवाब होगा कलई फेरना का माना ऐब छुपाना है और कलई खोलना का माना क्या है? तो ऐब जाहिर करना इसका माना है। नंबर 5 में दिया गया है अहादी या अहदी। एक होता है अहादी, एक होता है अहदी। तो अहादी का माना क्या है? जो अकेला दरवाज़ा पर पहरा देता है, जो अकेला दरवाज़ा पर पहरा देता है उनको अहादी कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर हम कहें चौकीदार जो होता है इनको अहादी कहते हैं और अहदी सुस्त और काहिल इंसान को कहते हैं। नंबर 6 में दिया गया है कलिया और कुरमा। कलिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है भुना हुआ गोश्त, लेकिन हमारी ज़बान में कलिया शोरबेदार गोश्त को कहते हैं। कुरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना भी भुना हुआ गोश्त है। तो कलिया और कुरमा के बारे में हम लोग पढ़े। नंबर 7 में दिया गया है सुर्खी के बारे में। सुर्खी का माना क्या है? सुर्खी का माना है उन्वान, जिसे हम लोग कहते हैं हेडिंग। तो सुर्खी का माना क्या है? उन्वान है। तो साथियों 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा ताकि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल सके और रोज़ाना के टेस्ट आप दे सकें। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकें। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात के तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में दिया गया है भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो इसका जवाब होगा भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। सवाल नंबर 2 में दिया जा रहा है सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? जवाब होगा 4 ज़बानों के माहिर थे, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। किताबों के अंदर सिर्फ 2 ज़बान के बारे में दिया गया है। नंबर 1 में है अंग्रेज़ी, नंबर 2 में है अरबी, लेकिन दरअसल वो जो है 4 ज़बानों के जानने वाले थे। नंबर 1 में है अरबी, उसके बाद फ़ारसी, उसके बाद उर्दू, उसके बाद जो है अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है फुतूर के माना बताइए। तो इसका जवाब होगा फुतूर के माना तोड़ने के हैं। फुतूर के माना क्या है? तोड़ने के हैं और फुतूर ही से इफ्तार बना है जो हम लोग हर रमज़ान में इफ्तार खाते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा अरबी को नाश्ता में फुतूर कहते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो जवाब होगा फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है? कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या हैं? तो जवाब होगा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माना लिसान है। इसके माना क्या है? लिसान है। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है सुर्खी से क्या मुराद है? तो जवाब होगा सुर्खी से मुराद उन्वान है, जिसे हम लोग हेडिंग कहते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है अहादी और अहदी के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब होगा अहादी जो अकेला दरवाजे पर पहरा देता है उनको अहादी कहते हैं और अहदी कहते हैं सुस्त काहिल इंसान को अहदी कहते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कलई फेरना और कलई खोलना के माना में क्या फ़र्क है? तो जवाब होगा कलई फेरना के माना ऐब छुपाना और कलई खोलना के माना ऐब जाहिर करना है। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? तो जवाब होगा
कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रंगा कहते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बानें मुसन्निफ़ मुराद लिया है? तो जवाब होगा, पूरब की ज़बान से मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़बान है और पश्चिम की ज़बान से मुराद अंग्रेज़ी ज़बान है। तो यहाँ तक हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग पढ़ लिए। अगर आप जो है हमारे ऑफिशियल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाएं। वो नंबर ये है 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।